ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਚ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਵਰਲਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਸਟ। ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਸਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Y20 ਔਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂਥ 20 ਸਮਿਟ G20 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ G20 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਲ ਖੁਬਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲ ਖੁਬਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ 20 ਸਮਿਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ Y20 ਸਮਿਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਅਵਾਰਡ। ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ISA ਸੋਲਰ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਅਲ ਨੁਆਮੀ UAE ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਅਵਾਰਡ। ਦੂਸਰਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਿਆ ਅਵਾਰਡ। ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਿਆ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿਨਾਕਰ ਅਵਾਰਡ ਆਰੂਸ਼ੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਰ ਅਰਪਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, 2 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨਾਕਰ ਅਵਾਰਡ, ਆਰੂਸ਼ੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਰ ਅਰਪਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੋਹਨ ਜੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰੋਹਨ ਜੇਟਲੀ ਜੂਨ 20, 2021 ਤੱਕ। ਰੋਹਨ ਜੇਟਲੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਸਨ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਅ ਪਲੇਟ ਆਫ ਫੂਡ 2020। ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਅ ਪਲੇਟ ਆਫ ਫੂਡ 2020 ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2020 ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਸਟ ਆਫ ਅ ਪਲੇਟ ਆਫ ਫੂਡ 2020। 36 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ 28th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਓਪਨ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਐਂਡਰਸ ਐਂਟੋਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਰੈਸਮਸ ਜੈਮਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਰੈਸਮਸ ਜੈਮਕੇ ਜੋ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡਰਸ ਐਂਟਨਸਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰੈਸਮਸ ਜੈਮਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੋਮੀ ਓਕੂਹਾਰਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਰੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਰੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ੋਮੀ ਓਕੂਹਾਰਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਓਪਨ ਦਾ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਰੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਰਹਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ
वी श्रैंक द ड्रैगन। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। इस बुक नूं किन्ना द्वारा लिखा गया है? इस बुक नूं लिखा गया प्रदीप गुरहा द्वारा, प्रदीप गुरहा द्वारा। नैक्सट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की करा? इंडिया नूं 177 मिलियन डॉलर्स का लोन प्रोवाइड किया। 177 मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड किए गए ने किस दे लई? टू अपग्रेड 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दे विच 450 किलोमीटर की स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड नूं अपग्रेड करन दे लई महाराष्ट्र दे विच 177 मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड किए गए हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा आयुष्मान सहकार स्कीम, आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की गई है। आयुष्मान सहकार स्कीम टू असिस्ट द कॉरपोरेटिव्स टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग हैल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया दे विच हैल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नूं इंप्रूव करन दे लई आयुष्मान सहकार स्कीम नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च की गई है अंडर नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है डोनर मिनिस्टर। डोनर मिनिस्टर कौन ने? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह इंडिया के डोनर मिनिस्टर ने। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे न्यू एजुकेशनल कंपलैक्स नेम्ड पंडित मदन मोहन मालवीया। पंडित मदन मोहन मालवीया के नाम के उत्ते जी जम्मू के विच सेंट्रल यूनीवर्सिटी है उस दे विच एक नवा एजुकेशन कंपलैक्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है। किन्ना ने रखा है? जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, अगर आप गल करिए जम्मू के विच दो नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं, एक तो जितेंद्र सिंह तो एक दूसरे नाम की इंपोर्टेंट बनते हैं इत्थे दे लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। या तो ज़्यादातर जी इनोग्रेशनस ने मनोज सिन्हा द्वारा किए जाते हैं या फिर जम्मू के मिनिस्टर, जम्मू तो लोक सभा MP ने, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। जापान, जापान द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विद वियतनाम। वियतनाम के नाल जापान द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया। रिसेंटली इंडिया की भी मीटिंग हैल्ड की गई सी वियतनाम के नाल। वियतनाम कैपिटल हनोई है, करंसी डोंग चलती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज आप काफ़ी बार डिस्कस की है कि इंडिया, जापान और USA द्वारा कंडक्ट की जाती है एक नेवी एक्सरसाइज मालाबार। इस बार आप डिस्कस किया कि क्वाड कंट्रीज़ की मीटिंग हुई सी। क्वाड कंट्रीज़ की मीटिंग दे विच डिसाइड किया गया सी कि ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार का पार्ट बनाया जाएगा। हुण ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है नवंबर 2020 नैक्सट मंथ इस एक्सरसाइज नूं कंडक्ट किया जाएगा और इंडिया कित्थे कंडक्ट की जाएगी? है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी दे विच, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी दे विच इसनूं कंडक्ट किया जाएगा। नैक्सट है बांग्लादेश द्वारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नूं इनवाइट किया गया है 50 साल पूरे होने ते। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस डे 50 साल पूरे होने ते कदों होणगे? मार्च 26 2021, मार्च 26 2021 नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कित्थे जाणगे? बांग्लादेश जाणगे। हींग कल्टीवेशन, हींग कल्टीवेशन शुरू की गई है। इंडिया दे विच पहली बार हींग उगानी शुरू की गई है। कित्थे की जाएगी? लाहौल और स्पीति। कित्थे ने? हिमाचल प्रदेश दे, हिमाचल प्रदेश दे लाहौल और स्पीति 750 हैक्टेयर इस दे लई यूज़ किए जाएंगे। किन्ना द्वारा? CSIC काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा। अगर हुण तक की गल करते हैं तो इंडिया लगातार हर साल 1200 टन हींग एक्सपोर्ट करता है, तकरीबन 600 करोड़ रुपया खर्च करके। हुणे जिहड़ा 600 करोड़ रुपया इसनूं बचाउण दे लई, एक्सपोर्ट ज़्यादा करन दे लई और इंपोर्ट रिड्यूस करन दे लई इस इनीशिएटिव नूं शुरू किया गया। इंडिया किहड़ी कंट्रीज़ तो हींग लैंदा सी? अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान तो। नैक्सट है शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपीयनशिप। शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपीयनशिप है जिहड़ी शूटिंग तो बिलोंग करती है। इस दे विच इंडिया के एलेवनील वेलवरियन जो कि तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने गोल्ड मैडल जीते है और शाहू तुषार माने द्वारा सिल्वर मैडल जीतया गया। ठीक है जी। स्टैटिक पोर्शन दे विच आपां उत्तराखंड डिस्कस करांगे। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 दे विच बनाया गया सी। उत्तराखंड नूं 2000 दे विच बनाया गया सी।
कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी देहरादून है, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी देहरादून है। समर कैपिटल गारसेन है, उत्तराखंड की समर कैपिटल गारसेन है। त्रिवेंद्र सिंह रावत TS रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने। और गवर्नर की गल करिए बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 लोक सभा सीट्स और 3 राज्य सभा सीट्स ने उत्तराखंड दे विच। 71 विधान सभा की सीट्स ने उत्तराखंड दे विच। बॉर्डर स्टेट की गल करते हैं तो यूपी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन्हों तो बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड। तहरी डैम उत्तराखंड के विच भगीरथी रिवर फ्लो करती है और उसके उत्ते एक फेमस डैम है तहरी डैम। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। काफ़ी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडिया का सब तो पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क भी याद रखना है। स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर बनाया जा रहा है गंगोत्री नेशनल पार्क दे विच। गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स। स्टेट एनिमल अल्पाइन मस्क डियर है। स्टेट बर्ड मौलल है और स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल। स्टेट ट्री बुरांस। इस तो इलावा बिंसर और मलान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे है उत्तराखंड दे विच। बिंसर और मलान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड दे विच। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज नेशनल पुलिस कमैमोरेशन डे। नेशनल पुलिस कमैमोरेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया। नेशनल पुलिस कमैमोरेशन डे ऑब्जर्व किया गया 21 अक्तूबर को। 21 अक्तूबर को की होया सी कि 1959 दे विच 1959 दे विच चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंडिया विच अटैक किया सी, जिस कारण 15 तो आई थिंक 20 पुलिस ऑफिसर सीगे जिन्हां दी डेथ हो गई सी। उन्हां नूं मार्टियर जिहड़े ने उन्हां नूं ऑनर करन दे लई ऑब्जर्व करना शुरू किया गया सी नेशनल पुलिस कमैमोरेशन डे। नेशनल पुलिस कमैमोरेशन डे कदों ऑब्जर्व करना शुरू किया गया सी 21 अक्तूबर को। ठीक है, याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए 20 अक्तूबर वर्ल्ड ओस्टियोपोरिस डे भी शुरू किया गया। वर्ल्ड ओस्टियोपोरिस डे 20 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ओस्टियोपोरिस बेसिकली एक डिसीज़ है जिस दे विच जिहड़ी अपनी बोन डेंसिटी है, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, जिस कारण ओस्टियोपोरिस डिसीज़ होंदी है। इस डिसीज़ तो अवेयरनेस फैलाने के लिए 20 अक्तूबर को हर साल इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। एक होर इंपोर्टेंट दिन नेशनल सोलिडरिटी डे। नेशनल सोलिडरिटी डे इस दिन 20 अक्तूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है आर्मड फोर्सिस को ऑनर करने के लिए। बेसिकली 1961-62 दे विच जिहड़ी इंडो चाइना वार हुई सी उस दे विच आर्मड फोर्सिस का जिहड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सी, इंडिया चाइना वॉर दे विच आर्मड फोर्सिस का जिहड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सी उसनू ऑनर करने के लिए नैशनल सोलिडरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1966 दे विच इसनू ऑब्जर्व करना शुरू किया गया सी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की रिकमेंडेशन के उत्ते इसनू शुरू किया गया सी नैशनल सोलिडरिटी डे। काफ़ी इंपोर्टेंट डे है, 1966 तो ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट है DRDO। DRDO हैज़ सक्सैसफुली टेस्टिफाइड। DRDO ने की कराया एक मिसाइल टेस्टिफाइड की। मिसाइल टेस्टिफाइड की इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिसाइल है कितों, चंदीपुर उड़ीसा तो। इन्हां ऑप्शनस दे विचों किहड़ी मिसाइल DRDO ने रिसेंटली टेस्टिफाइड की है। किहड़ी मिसाइल टेस्टिफाइड की है? थर्ड ऑप्शन संत। काफ़ी इंपोर्टेंट और इंटरस्टिंग मिसाइल है कि जिहड़ी संत है वह की एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। बेसिकली वॉर दे विच काफ़ी ज़्यादा काम आती है। DRDO द्वारा टेस्ट की गई है। क्यों होंदी है कि यह एंटी टैंक मिसाइल है, जो टैंक्स वगैरह होंगे ने उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के काफ़ी इंपोर्टेंट रोल अदा करती है संत मिसाइल। ठीक है, याद रखनी है। इस तो इलावा इस दे रिलेटेड कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स ने कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। यह एयर टू सरफेस मिसाइल है। आप डिस्कस कीतियां सी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सिमिलरली सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस मिसाइल है संत। दूसरा 15 तो लैके 20 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है। 15 तो लैके 20 किलोमीटर इसकी
स्ट्राइक रेंज है और ये एक मिसाइल है नाग मिसाइल है जी, ये उसी का ही एक वर्जन है। नाग मिसाइल है जी, ये उस तरीके की एक मिसाइल है जिस तरीके नाग के दो डिफरेंट वर्जन बनाए गए, एक हेलीना और दूसरी संत। ठीक है, हेलीना और संत दोनों नाग के एक वर्जन ने जिहड़े कि हैलीकॉप्टर तो लॉन्च कीतियां जा सकदियां ने, एयर तो लॉन्च कीतियां जा सकदियां ने। नाग मिसाइल, हेलीना मिसाइल और संत मिसाइल। ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का रैंक कितना है एशिया पावर इंडेक्स 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस नूं रिलीज़ किया गया सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट। सिडनी दी लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा एक रैंक रिलीज़ किया गया। इंडिया उस किन्नवें रैंक पे है, 4th रैंक पे है। ठीक है, इंडिया किन्नवें नंबर पर है, 4th रैंक पे है। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ के बारे भी डिस्कस करते हैं, डिटेल दे विच इस इंडैक्स नूं डिस्कस करते हैं। सब तो पहले इंडिया किन्नवें नंबर पर है, 4th रैंक पे है एशिया पावर इंडैक्स 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। रिलीज़ किया गया सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा 26 कंट्रीज़ के विचों इंडिया 4थे नंबर पर है। इस इंडैक्स नूं USA द्वारा टॉप किया गया, 2nd नंबर पर चाइना और 3rd नंबर पर जापान रहे। इस इंडैक्स दे विच बेसिकली की काउंट किया जाता है कि दो कंट्रीज़ दे विच या डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच किस तरीके नाल ट्रेड रिलेशनस ने, कितना वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के उत्ते खर्च कर रहा है। ठीक है, इस तरीके के जिहड़े इनिशिएटिव्स ने इन्हां द्वारा इस इंडैक्स नूं रिलीज़ किया जाता है। दूसरा एक होर इंडैक्स रिलीज़ किया गया है 44th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। 44th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इंडैक्स। इस इंडैक्स नूं OECD द्वारा रिलीज़ किया गया। OECD द्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा इस इंडैक्स के विच इंडिया 2nd नंबर पर रहा है और 1st नंबर पर चाइना है। इस इंडैक्स के विच की देखा जाता है कि माइग्रेशन केड़ी, अगर गल करिए इस कंट्रीज़ के विचों केड़ी कंट्रीज़ के विचों सब तो ज़्यादा लोगों ने माइग्रेट किया है OECD कंट्रीज़ के वल। किन्ना ने माइग्रेट सब तो ज़्यादा किया है, चाइना के विचों किया गया और दूसरे नंबर पर अपना इंडिया है। इस तो इलावा OECD के रिलेटेड अपने याद रखना है, रिसेंटली इंडिया नूं वाइस चेयर बनाया गया सी OECD के GLP ग्रुप का। OECD के GLP ग्रुप का वाइस चेयर किहड़ी कंट्री नूं बनाया गया सी, इंडिया नूं बनाया गया सी। नेक्स्ट है नासा हैज़ पार्टनर्ड। नासा ने की किया किहड़ी कंपनी के नाल पार्टनरशिप की है टू इंस्टॉल 4G ऑन मून। बेसिकली 4G टैक्नोलॉजी नूं मून के उत्ते लेके जाने के लिए जिस नासा ने जिस अनाउंस किया है कि 2024 दे विच एक मैन और एक वूमेन नूं भेजा जाएगा कित्थे, मून के उत्ते, और 4G टैक्नोलॉजी नूं भी भेजा जाएगा। तो 4G टैक्नोलॉजी लई इंडिया ने नासा USA की स्पेस एजेंसी है, नोकिया के नाल पार्टनरशिप की है। नोकिया 4G टैक्नोलॉजी शुरू करेगा मून के उत्ते। ठीक है, अच्छा नासा की गल करते हैं तो नासा USA की स्पेस एजेंसी है। अच्छा पहले इसकी गल कर लेना रिलायंस की गल करते हैं। मुकेश अंबानी हैड ने लगातार 13वीं बार फोर्ब्स इंडिया लिस्ट के टॉप ते ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए VI ब्रांड और लोगो रिसेंटली लॉन्च किया गया सी वोडाफोन और इंडिया नूं मिक्स करके, याद रखना है। नासा की गल करते हैं, USA की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा दे हैड ने जिम ब्राइटस्टीन नासा के हैड ने वाशिंगटन DC दे विच इसका हैडकुआटर है। इसके हैडकुआटर का नाम मैरी के नाम के उत्ते रखा गया है। एक साइंटिस्ट से USA के ही इन्हों के नाम के उत्ते रखा गया इन्हों की बिल्डिंग का नाम, नासा की बिल्डिंग का नाम, याद रखना। नेक्स्ट है who has participated in 18th meeting of Prosecutors General of SCO via video conferencing from India। बेसिकली SCO की शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बार बार न्यूज़ के विच रह रहा, डेली वांगू इसमें आप डिस्कस कर रहे हैं। SCO की फर्स्ट स्टार्टअप फोरम की मीटिंग इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, SCO का हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट इंडिया होस्ट कर रहा है। SCO का हैड ऑफ स्टेट समिट रशिया होस्ट कर रहा है, याद रखने ने ये। ठीक है, इस तो इलावा SCO की ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग हैल्ड की जाएगी जो इंडिया की होस्ट करेगा, स्टार्टअप इंडिया SCO स्टार्टअप फोरम होस्ट करेगा।
इस तो इलावा SCO की डिफरेंट ट्रेड मिनिस्टर्स तो पहले जस्टिस मिनिस्टर्स की मीटिंग हैल्ड की गई सी 16 अक्तूबर को, जिस रवि शंकर प्रसाद इंडिया के जस्टिस मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सी। सिमिलर तरीके नाल प्रोसिक्यूटर्स जनरल की मीटिंग हैल्ड की गई है, 18th मीटिंग है। इंडिया वालों इंडिया के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी, इंडिया वालों किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इस तो इलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि SCO के 8 मैंबर कंट्रीज़ ने, बीजिंग चाइना के हैडकुआटर है। SCO के इंडिया और पाकिस्तान को 2017 के ऐड किया गया सी। ठीक है, याद रखना। के वेणुगोपाल इंडिया के अटॉर्नी जनरल ने, अटॉर्नी जनरल कौन ने? इंडिया के वेणुगोपाल। और इस मीटिंग के ये भी अनाउंस किया गया कि जी 19th मीटिंग है, यानी कि अगले साल की मीटिंग है 2021 की, उसनों इंडिया होस्ट करेगा। 2021 की सोलिसिटर जनरल की मीटिंग भी, प्रोसिक्यूटर्स जनरल की मीटिंग भी इंडिया होस्ट करेगा। दिनेश भील स्पोर्ट्स पर्सन ने, आर्चरी तो बिलोंग करते हैं। इन्हों कित्थे अपॉइंट किया गया सी? इन्हों सिविल सर्विसिज ऑफिसर्स नूं, इंडिया नूं इन्हों सिविल सर्विसिज ऑफिसर्स नूं ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया गया सी। ठीक है, उत्तराखंड के जो ट्रेनिंग सेंटर है उत्तराखंड के मैसूरू के उत्थे अपॉइंट किया गया सी। M राजेश्वर राव RBI के डिप्टी गवर्नर, RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होंगे ने, एक पोस्ट खाली सी, उस खाली पोस्ट को फिलअप करने के लिए M राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया डिप्टी गवर्नर। बाकी जोड़े 3 डिप्टी गवर्नर ने उन्होंने नाम कमेंट बॉक्स के दसना है। MA गणपति को डायरैक्टर जनरल अपॉइंट किया गया सी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ब्यूरो के अपॉइंट किया गया सी डायरैक्टर जनरल MA गणपति। नैक्सट है विच IIT, केड़ी IIT द्वारा लॉन्च किया गया फुली ऑटोमेटेड डायरैक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म, एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मूव पे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान। राजस्थान के डेयरी फार्मर्स के लिए मूव पे नाम का एक डायरैक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केड़ी IIT द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? IIT मद्रास द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। अच्छा, IIT मद्रास की ही गल करते हैं तो IIT मद्रास द्वारा NIRF रैंकिंग भी टॉप किया गया सी। NIRF रैंकिंग, इस तो बाद अटल रैंकिंग रिलीज़ की गई, इस दे विच भी IIT मद्रास द्वारा ही टॉप किया गया सी। IIT मद्रास द्वारा मैडीकैब बनाया गया सी, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल मैडीकैब कित्थे बनाया गया सी? IIT मद्रास द्वारा केरला के लिए। इस तो इलावा राजस्थान के डेयरी फार्मर्स के लिए मूव पे लॉन्च किया गया। याद रखना है, राजस्थान के बारे गल करिए तो मोक्ष कलश योजना रिसेंटली लॉन्च की गई सी। इंदिरा रसोई योजना भी कित्थे दी है? राजस्थान की है। इस तो इलावा अगर बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो IIT रोपड़ द्वारा वार्ड बोट रोबोट बनाया गया सी। वार्ड बोट रोबोट IIT रोपड़ द्वारा। IIT दिल्ली द्वारा कोरोसोर किट बनाई गई सी, कोरोसोर किट IIT दिल्ली द्वारा। इस तो इलावा वॉश करो एप्लीकेशन भी IIT दिल्ली द्वारा। गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन IIT गुवाहाटी द्वारा। IIT बॉम्बे द्वारा आईस सिंक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया सी। डिजिटल स्टेथोस्कोप IIT बॉम्बे द्वारा। कोविड-19 के दौरान ही सारिया न्यूज़ ने ये, और सारिया न्यूज़ किते ना किते इंपोर्टेंट बननियाँ। जिन्ने भी एग्जाम्स हैल्ड किए जाएंगे क्वेश्चन इन्हों के विचों पूछे जाने काफ़ी ज़्यादा चांसेस ने। नैक्सट है ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की गई है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। इस बुक नूं किन्ना द्वारा रिलीज़ किया गया? ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की गई है NK सिंह यानी कि NK सिंह की लाइफ स्टोरी के उत्ते इन्हां द्वारा बुक लिखी गई है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने, ये वही NK सिंह ने जिहड़े 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन ने NK सिंह।
बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करते हैं तो मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली दे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली दे इन्हां द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई सी द अनफॉरगेटेबल बापू द अनफॉरगेटेबल बुक नूं रिलीज़ किया गया सी मनीष सिसोदिया द्वारा 151st बर्थ एनिवर्सरी ते महात्मा गांधी दी। एस हुसैन जायदी द एंड गेम बुक लिखी गई सी एस हुसैन जायदी द्वारा। बलदेव सिंह द्वारा जी बुक लिखी गई सी बुक का नाम सी सूरज कदे मरदा नहीं। इस तो इलावा स्टीव वो क्रिकेटर ने इन्हों द्वारा बुक लिखी गई सी द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बुक लिखी गई सी स्टीव वो क्रिकेटर ने याद रखने ने। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 ऑर्गेनाइज किया जाएगा 22 तो लैके 25 दिसंबर 2020 तक। ठीक है, बेसिकली इसका वेन्यू इंपोर्टेंट बनता होंगे एग्जाम के वेन्यू काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, पर इस साल यह ऑनलाइन मोड से वर्चुअल मोड से हेल्ड किया जाएगा, इस करके एडिशन इंपोर्टेंट बनेगा। किनवा एडिशन है 6th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किनवा एडिशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा 6th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 22 तो लैके 25 दिसंबर तक इसनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, याद रखना किनवा एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। इस तो इलावा साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर का नाम याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर ने। इस तो इलावा इन्होंने लवे हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने डॉक्टर हर्षवर्धन। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 6th एडिशन दिसंबर दे विच। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद IIT मद्रास। किहड़े बैंक ने IIT मद्रास दे नाल कोलैबोरेशन की है इनक्यूबेशन सैल IIT मद्रास दे इनक्यूबेशन सैल दे नाल, ताकि इंड स्प्रिंग बोर्ड एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जा सके स्टार्टअप्स नूं फंडिंग करने के लिए। नवे स्टार्टअप्स नूं फंडिंग करने के लिए IIT मद्रास द्वारा बेसिकली जिहड़े स्टार्टअप्स जिहड़े स्टूडेंट्स ने रिसर्चर्स ने उन्होंने द्वारा स्टार्टअप्स लॉन्च किए जाएंगे। हुण उन्होंने स्टार्टअप्स नूं शुरू करने के लिए लॉन्च करने के लिए कुछ फंडिंग चाहिए है, कुछ पैसे चाहिए ने उन्होंने, तो उस दे लई एक बैंक ने इस दे नाल कोलैबोरेशन की है। किहड़े बैंक ने कोलैबोरेशन की है? इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? चेन्नई दे विच है। इंडियन बैंक का हैडकुआटर याद रखना है चेन्नई दे विच है। IIT मद्रास दे नाल पार्टनरशिप की किस दे लई? इंग स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए, ताकि फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, बाकी ऑप्शंस दे विच इस तो इलावा IDBI बैंक याद रखना है, कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी IDBI बैंक इस दे दोबारा WhatsApp के उत्ते सर्विस शुरू की गई ने। WhatsApp के उत्ते सर्विस पहली बार शुरू करने वाला किहड़ा बैंक बनया सी? ICICI बैंक। येस बैंक की गल करते हैं, लोन ओवर सिक्योरिटीज़ और लोन इन सेकेंड्स, ये दो इनिशिएटिव काफ़ी इंपोर्टेंट इनिशिएटिव्स ने येस बैंक के। एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 30% स्टेक बाय किया गया सी, ये याद रखना है। एक्सा डिजिटल चैटबोट लॉन्च किया गया सी एक्सिस बैंक द्वारा। इस तो इलावा एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया सी एक होर इनिशिएटिव, काफ़ी इंपोर्टेंट इनिशिएटिव सीगा एक्सिस बैंक का, मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है। चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। PNB की गल करते हैं, डिजिटल अपनाए कैंपेन PNB द्वारा एक्सिस बैंक द्वारा ही एस क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया रिसेंटली। गूगल पे दे नाल और वीज़ा दे नाल मिलके एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया सी एक्सिस बैंक द्वारा। SBI के नवे हैड अपॉइंट किए गए हैं दिनेश कुमार खारा चेयरमैन ने SBI दे। और MD की गल करते हैं अश्वनी भाटिया MD अपॉइंट किए गए हैं SBI दे। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है विद विच कंट्री, केड़ी कंट्री के नाल मिलके इंडिया
स्टार्ट करेगा वाटर अटैचे और एग्रीकल्चर अटैचे। बेसिकली वाटर अटैचे लिखा मिलेगा पर कुछ जगह के उत्ते सानूं एग्रीकल्चर अटैचे भी पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर अटैचे इंडिया शुरू कर रहा है किहड़ी कंट्री दे नाल मिल के। जनवरी 2021 तो शुरू किया जाएगा ताकि उस कंट्री की टैक्नोलॉजीज़ नूं यूज़ किया जा सके इंडिया के वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सैक्टर नूं एडवांस बनाने के लिए इंप्रूव करने के लिए इंडिया के वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर सैक्टर नूं इंप्रूव करने के लिए यूज़ किया जा सके। किहड़ी कंट्री दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया है? इजराइल दे नाल। इजराइल दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम प्राइम मिनिस्टर का नाम SSC CHSL के एग्जाम पूछा गया सी बेंजामिन नेतनयाहू। बेंजामिन नेतनयाहू इजराइल के हैड ने, याद रखने ने। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शन की, पहले इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करंसी शकील चलती है, ये याद रखना है। इस तो इलावा इजराइल के नाल ही याद रखना है रिसेंटली USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल और UAE दे विच एग्रीमेंट साइन करवाया गया सी, जिस करके USA के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नूं की किया गया, नॉमीनेट किया गया नोबल पीस प्राइज़ 2021 के लिए। नोबल पीस प्राइज़ 2021 के लिए नॉमीनेट भी किया गया। ओमान कैपिटल मस्कट, करंसी रियल चलती है। बहरेन कैपिटल मनामा है और करंसी दिनार चलती है। पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन है, करंसी यूरो चलती है। स्पेन कैपिटल मैड्रिड है, करंसी यूरो चलती है। स्पेन के बारे याद रखना है COP25 समिट स्पेन के मैड्रिड के हैल्ड किया गया सी, जिसनों बेसिकली चिली के हैल्ड किया जाना सी। चिली कैपिटल सैंटियागो है, करंसी पैसो चलती है। चिली की गल चिली दे विच कुछ प्रॉब्लम्स करके स्पेन दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया सी। इस तो इलावा COP26 समिट ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच नैक्सट ईयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2021 दे विच, और इसके हैड पॉइंट किए गए सी आलोक शर्मा। पुर्तगाल की हैल्प के नाल गुजरात के लोथल दे विच मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है, ये याद रखना है। बाकी कंट्रीज़ रिलेटेड दो न्यूज़ ने वो डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ओमान का 9th सैशन इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन हैल्ड किया गया। इंडिया और ओमान की जॉइंट कमीशन मीटिंग हैल्ड की गई। कितवीं एडिशन? 9th एडिशन। इंडिया वालों हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। इंडिया वालों हरदीप सिंह पुरी द्वारा, वैसे ज़्यादातर मीटिंग के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर पार्टिसिपेट करते हैं। इस मीटिंग के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है और एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ माइनिंग, स्टैंडर्ड एंड मेट्रोलॉजी और फाइनेंशियल इंटैलिजेंस और कल्चर एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा कल्चर एक्सचेंज के लिए और माइनिंग के लिए। एग्रीमेंट किहड़ी कंट्री के नाल साइन किया गया? ओमान के नाल। बहरेन के रिलेटेड आप एक न्यूज़ डिस्कस की सी, सो लास्ट ईयर डिस्कस किया सी सलवा ईद नसीर का नाम। उस टाइम इन्हों के उत्ते चार्जिज लगाए गए सी डोपिंग के चार्जिज लगाए गए सी। हुण उन्होंने रिमूव किया गया, डिसमिस किया गया। उस टाइम डोपिंग के चार्जिज लगाए गए, उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन की गई। हुण फाइनली इन्हों का नाम क्लीयर कर दिता गया है। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? बहरेन तो। किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? एथलीट ने 400 मीटर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। सलवा ईद नसीर का नाम। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा, सलवा ईद नसीर किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? बहरेन तो बिलोंग करते हैं। 400 मीटर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। कैपिटल मनामा, करंसी दिनार चलती है। नेक्स्ट है हु हैज़ वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑफ कंट्री इन असम। आसाम दे विच फाउंडेशन स्टोन रखा गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किन्ना द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया? नितिन गडकरी द्वारा। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, एज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर इन्हों द्वारा इनोग्रेशन की गई है। इस तो इलावा इन्हों लवे MSME मिनिस्ट्री है और नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। ठीक है, जिहड़ा ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये भारतमाला परियोजना के अंडर बनाया गया। भारतमाला
ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 35 ਪਾਰਕਸ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ। ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਖੁੰਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਖੁੰਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾइमेट मिनिस्टर। दूसरी मिनिस्ट्री ਨਾਲ ਵੇ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और तीसरी हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है प्रकाश जावेदकर लवे, राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च वैबसाइट ऑफ डायरैक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स फॉर स्पोर्ट्स। ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਨਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ हेमंत सोरेन ने 11th नंबर ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। द्रौपदी मुर्मू ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੀਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਫਲਾਵਰ ਸੀ ਪਲਾਸ਼। ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਲਾਵਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਲਾਸ਼ ਫਲਾਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਪੋਰਟਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਮ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਚੇਸਟਾ ਸਕੀਮ, ਬੰਗਾਸ਼ਰੀ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਾਹ ਸੁੰਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ। ਦੀਦੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੀਆ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ। ਰਾਇਤੂ ਭਰੋਸਾ ਸਕੀਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਤੂ ਭਰੋਸਾ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੋਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਮੋਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੋਹ ਕਲਿਆਣ, ਮੋਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀਆ ਸਕੀਮ, ਪੀਠਾ ਸਕੀਮ, ਅੰਮਾ ਘਰੇ, ਸੁਨੇਤਰ ਸਕੀਮ, ਸਮਰਿਧੀ ਸਕੀਮ ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਵਹੀਲੀ ਡਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਰਾਮ ਸਕੀਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬੂਜਾ ਉੜੀਸਾ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫੂਲਬਗਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੂਲਬਗਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ ਦੱਸਣੇ, ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਔਰ ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹੀ अंडर वाटर मैट्रो प्रोजेक्ट है फूल बगन रेलवे स्टेशन, जो कि ईस्ट वैस्ट मैट्रो कोरीडोर ਨੂੰ कनैक्ट करता है अंडर रिवर हुगली। ठीक है, याद रखना है 16.6 किलोमीटर लंबा एक कोरीडोर है जिहड़ा कि बनाया गया फूल बगन रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल। याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि विच रेलवे स्टेशन इज फर्स्ट अंडरग्राउंड मैट्रो स्टेशन ऑफ इंडिया, किहड़ा होएगा फूल बगन। तेलंगाना की गल करते हैं तो NGT नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसनों 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, NGT द्वारा क्लीयरेंस प्रोवाइड की गई है कालेश्वरन लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ਨੂੰ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालेश्वरन लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ਕਿਹੜੀ स्टेट का है, कित्थे दा है तेलंगाना का। तेलंगाना के गोदावरी रिवर के उत्ते एक लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कालेश्वरन लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट। ये सपोर्ट करेगा भगीरथी और कताकिया मिशन ਨੂੰ। भगीरथी मिशन और कताकिया मिशन ਜਿਹੜੇ कि लॉन्च किए गए सी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए तेलंगाना के विलेजिज के विच। तेलंगाना के विलेजिज के विच ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने मिशनस ਨੂੰ लॉन्च किया गया सी। और ਜਿਹੜਾ कालेश्वरन प्रोजेक्ट है यह भी हैल्प करेगा इस इनीशिएटिव ਨੂੰ अचीव करने के लिए। उड़ीसा की गल करते हैं तो उड़ीसा ने मोह विद्युत हुणे आप डिस्कस किया सी मोह रिलेटेड जिन्नी स्कीम्स ने उड़ीसा दियां ने, तो मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च किया उड़ीसा ने, एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की इस दे नाल ताकि इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स की हैल्प की जा सके। बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम है इलैक्ट्रिसिटी के रिलेटेड ग्रीवियंसिस ने उन्होंने सॉल्व करने के लिए, इलैक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए और नवे इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शनस भी लैन के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया मोह विद्युत पोर्टल उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर का नाम की है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ਨੂੰ अवॉर्ड दिता गया सी पैटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनीमल अवॉर्ड नवीन पटनायक ਨੂੰ दिता गया सी। याद रखना है। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन ਨੂੰ लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।